رفتیں اور بلندی تجھ پر ناز کرے، رفتیں اور بلندی تجھ پر ناز کرے، خدا تیری یہ عمر اور بھی دراز کرے، حسین چہرے کی یہ تابندگی مبارک ہو۔ حنیف عباسی صاحب آپ کو سالگرہ کی خوشی مبارک ہو۔ نجیب ملک صاحب آپ کا، نوید ملک صاحب دوبارہ یہ آپ نے جو شاید ہمیں بھی گھر میں میں نے نہیں کبھی اتنی آرگنائز قسم کی برتھ ڈے میں نے زندگی میں نہیں بنائی۔ اب جب سے سیاست میں آئے ہیں لوگ اٹھا کے کیک لے آتے ہیں، گھر میں ہم کیک کاٹ دیتے ہیں اور 10-10 20-20 کیک آ جاتے ہیں، لیکن اتنی آرگنائز برتھ ڈے میں نے اپنی زندگی میں نہیں منائی۔ آج کی اس ہماری تقریب کے مہمان خصوصی کسی تعارف کے محتاج نہیں، فارمر فیڈرل منسٹر، سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN پنجاب، یہ تو ان کے عہدے ہیں اور بے شمار پورٹ فولیو تجارتی لحاظ سے ان کے ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق، جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھائیوں والا ہے، ان کے ساتھ محبت والا ہمارا رشتہ ہے، اور اسی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ جنوری میں حنیف عباسی صاحب کی برتھ ڈے ہوتی ہے، لیکن میں نہیں کر سکا، تو پھر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آؤٹ آف کنٹری تھے، پھر حنیف عباسی صاحب چلے گئے، تو جب پورا ایک بنچ اس شہر کا اکٹھا ہوا تو ہم نے سوچا کہ اس کی اب ہم سیلیبریشن ایک کر لیں۔ تو حنیف عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے آپ نے ہمیں ہمیشہ وقت دیا، اور آج ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کریں۔ حنیف عباسی صاحب آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسی خوشیاں اور صحت والی زندگی دے، اور آپ شیر پنڈی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پنڈی کی عوام پہ آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔
اس کے بعد میں پریزیڈنٹ چیمبر اسلام آباد احسن ظفر بختاروی صاحب، فہد وحید صاحب، اظہر اسلام صاحب اور ہمارے سردار یاسر صاحب، عامر وحید صاحب، سردار طاہر صاحب، چودھری عبدالرؤوف صاحب، شانی شاہ اور اسلام آباد باہر سے آئی ہوئی بزنس کمیونٹی، تمام دوستوں کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ حنیف عباسی صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اس محفل میں آ کے رونق لگائی ہے۔ اور عباسی صاحب کے متعلق بس یہ کہوں گا کہ راولپنڈی خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس حنیف عباسی صاحب ہے۔ اسلام آباد کے پاس اگر حنیف عباسی صاحب ہوتے تو اسلام آباد کی آج حالت اور ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حنیف عباسی جس کا یار ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے آج کی جو محفل ہے وہ حنیف عباسی صاحب کے لیے نوید ملک صاحب نے سجائی ہے۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت اہتمام کیا ہے، بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے اور حنیف عباسی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، خوشیاں دے، اور نوید ملک کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوشیاں دے کہ یہ ایسا دوست ہے جو کہ دوستوں کے ساتھ چلتا ہے، ان کی غمی خوشی میں خوش بھی ہوتا ہے، خوشی میں اور غمی میں ہمیشہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس جیسے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میں نوید ملک کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ خواتین و حضرات، آپ سب کا بھی شکریہ یہاں تشریف لانے پہ، اور حنیف عباسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حنیف عباسی صاحب راولپنڈی کے لوگوں کے لیے بھی بہت جذبہ رکھتے ہیں، راولپنڈی میں جو بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ G9 وغیرہ جو ہے نا اس علاقے اس میں ہم باہر سے لوگ لا کے اپنا جو ہے نا الیکشن لڑتے ہیں، تو حنیف عباسی صاحب کا یہاں G9 کی طرف بھی جو ہے نا یہ ایسے دبنگ لیڈر کا ضرورت ہے کہ بھی اپنے، کیونکہ اور کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو میری طرف سے آپ کو جنم دن مبارک ہو، ایسی ہزاروں خوشیاں آپ دیکھیں۔ حاضرین محفل، نوید بھائی نے یہ جو آج کی خوبصورت شام سجائی ہے حنیف عباسی صاحب کی محبت میں، اور اس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حنیف عباسی صاحب، زندگی کی خوشی دوسروں کی خوشی ہوتی ہے، تو آپ جو دوسروں کی خوشیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ سب بزنس کمیونٹی اور آپ کے دوست آج آپ کی خوشی میں سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ایسی خوشیاں ڈھیروں دے۔ میں آج کی اس پلیٹ فارم سے صرف ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی صرف اور صرف ملک پاکستان کی پارٹی ہے، ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ انشاءاللہ خوشیاں بانٹیں، پازیٹیوٹی جنریٹ کریں، پازیٹیوٹی کا لیکچر دیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ ایک جماعت رکھتے ہیں، تو پلیز سب مل کر اس ملک کو بلڈ کرنے کے لیے رول ادا کریں۔ حنیف بھائی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے۔ نوید بھائی، آپ کی محبتوں کا یہ صلہ جو ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں نوازے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں شکریہ جی نوید صاحب کا، انہوں نے آج یہ خوبصورت محفل کا ارینج کیا۔ حنیف عباسی صاحب کو بہت بہت سالگرہ کی مبارک جی، اور ہمارے نوید صاحب اور تمام تاجر تاجر کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ارینج کیا۔ عقائد کی سالگرہ کا دن 4 جنوری کو تھا، لیکن آج وہ سیلیبریشن اسلام آباد کے جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ منا رہی ہے، اور میں نوید بھائی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس ایونٹ پہ آپ نے مجھے بھی یاد رکھا۔ اور میں حنیف عباسی صاحب کی نظر ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ راہ الفت میں گو ہم پہ بڑا مشکل مقام آیا، راہ الفت میں گو ہم پہ بڑا مشکل مقام آیا، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بنا۔ تو حنیف عباسی صاحب، آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور آپ واقعی دبنگ لیڈر ہیں اور میرے سیاسی استاد ہیں۔ اگر میں نے مشاہد اللہ خان صاحب کے بعد کسی کو سیاسی استاد مانا ہے تو وہ حنیف عباسی صاحب ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی سے بڑا کچھ سیکھتی ہوں میں، بڑی کچھ ان سے بڑا انسپائر ہوں کہ میری جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑا باریکی سے نوٹس کرتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے روکتے ہیں، مجھے ٹوکتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ ایسا لیڈر میرا راولپنڈی کا لیڈر ہے۔ اور میں اپنے دانیال سر جو میرے لیڈر ہیں میرے حلقے کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، آج وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سو مچ۔ نوید صاحب کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ایک شعر ہم بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خدا ایسے احساس کا نام ہے جو رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ آپ کو بہت سالگرہ کی مبارک ہو، تھینک یو۔ جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں
जिस तरह बर्थडे हुई या दावत हुई, तो मैं समझता हूँ ये उस शख्सियत के एक अक्कासी करती हैं किरदार की। तो हम में नवीद भाई एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो कि किसी की बर्थडे नहीं भूलते, किसी की खुशी नहीं भूलते। तो मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि उन्होंने हमें नवीद भाई जैसे दोस्त दिए। जहाँ तक हनीफ अब्बासी साहब का ताल्लुक़ है तो ये एक तारीख़ है। ताजरों से इन्होंने सियासत शुरू की और सबसे बड़ा आवाम जो कौमी असम्बली है वहाँ पे गए, मिनिस्टर बने और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमारे सामने ही इन्होंने सारी सियासत की। जब ये ट्रेड पॉलिटिक्स में थे तो उस वक्त भी इन्होंने पूरी अपनी जद्दोजहद के साथ सियासत की। और मैं समझता हूँ कि पिछले दौर में जो मेट्रो बनी और रिकॉर्डेड टाइम में पाकिस्तान के रिकॉर्ड में, मेरा ख्याल है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज़ आनी चाहिए कि वज़ीर आला जनाब आज के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे और उनके दाएं बाजू और इस प्रोजेक्ट को सारा लेके चलने वाले हनीफ अब्बासी साहब थे। तो पिंडी इस्लामाबाद की तमाम ताजर बरादरी हनीफ भाई आपका शुक्रिया अदा करती है और मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट पिंडी और इस्लामाबाद को दिया। इसके अलावा भी आपका जो कार्डियोलॉजी सेंटर है, क्योंकि मैं खुद दिल का मरीज़ हूँ तो मैं वहाँ विज़िट करता हूँ, तो इतना अच्छा स्टैंडर्ड वो रखा गया है कि मैं समझता हूँ ये भी खुश नसीबी है पिंडी और इस्लामाबाद की तमाम जितने यहाँ रहने वाले हैं कि इतना अच्छा कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं उनमें भी आप अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। और आज इस स्टेज से मैं उस वाक़े का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि सेंटोरस का एक वाक़या हुआ, गो के वो एक इत्तफाकिया वाक़या था, लेकिन जो किरदार हनीफ भाई ने अपने छोटे भाई के साथ मिलके, सरदार यासर इलियास खान के साथ मिलके और हमारे साथ मिलके तो उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। आज मैं भरी महफिल में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बासी साहब आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। मैं इस मौका पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिन मुश्किल हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है इसमें सभी लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, तो मेरी इन सब से आप सब से रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश करें कि एक्सपोर्ट की जो भी चीज़ है वो कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल ना करें और इस मुल्क का ज़र मुबादला बचाएं, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ अर्सा बाहर गुजारा है, मेरे ख्याल में दुनिया में अपने वतन से खूबसूरत कोई जगह नहीं होती। हमेशा आप एक नंबर के शहरी अपने वतन में ही होते हैं, किसी और कंट्री में जाके आप नंबर 1 शहरी नहीं बन सकते। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क का कदर करें, इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क की कदर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्बासी साहब, दिल की गहराइयों से एज ए रोल मॉडल आपका शुक्रिया करें। इस महफिल में ये जो लोग बैठे हैं इनसे कोई आपका लेन देन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, लेकिन आज ये सब जिस मीशत के हालात से गुजर रहे हैं उसमें से वक्त निकाल के आ जाना, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ट्विन सिटीज़ के रोल मॉडल के लिए एक बेहतरीन टाइम निकाला अपने मसरूफियात में से और आपने उनको अप्रिशिएट किया। और मैं तो यही चाहूँगा कि हम आपको इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें एज अ रोल मॉडल। आप सियासी किसी पार्टी के नहीं, आप हर आम इंसान की आवाज़ है। तो विद दोज रिमार्क्स, थैंक यू नवीद साहब, हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे हनीफ भाई साहब आपको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप वैसे भी पार्टी जो है वो पाकिस्तान से बाहर करके आए हैं, तो वापसी पे जो है आफ्टर पार्टी आपको मलिक नवीद साहब आज इंशाल्लाह देंगे। तो हनीफ भाई साहब हमारी हर दिल अजीज शख्सियत हैं इस्लामाबाद की, और हम ये रिग्रेट करते हैं कि हनीफ भाई साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट करते। तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत खुशियाँ मज़ीद मनाने की, अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ मनाने की तौफीक आपको सेहत दे अच्छी। और इसी तरह मेरे भाई जनाब नवीद मलिक साहब जिस प्यार से सब दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, अल्लाह ताला इनकी भी उम्र भी दराज करे और अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। कि अब्बासी साहब नेक दिन इंसान हैं
और अब्बासी साहब जो है लोगों की, आवाम की, हमारे पिंडी इस्लामाबाद के जितनी जो लोग हैं उनकी खिदमत करते हैं। पहले पिंडी में अब्बासी साहब ने अपना लोहा मनवाया और आजकल इस्लामाबाद में भी आप देखें जितने आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो अब्बासी साहब उसमें पेश है और काम की स्पीड जो है अब्बासी साहब की वो देखने वाली है। और दूसरी बात यह है कि अब्बासी साहब डेली RIC हॉस्पिटल है, एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, डेली वहाँ पे जाते हैं और जितने वहाँ पे उनको गरीब लोग नज़र आते हैं और उनकी वो खिदमत करते हैं, उनके मसले हल करते हैं, चाहे ये हुकूमत में थे या नहीं थे, जब भी जो भी हो तो अब्बासी साहब की रूटीन है कि डेली उन्होंने अपने काम में जाने से पहले वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। तो ये देखें लोगों की दुआएं लगी पिंडी में, इनको इन्होंने अच्छे जितने काम किए, किडनी का हॉस्पिटल, आपके पिंडी शहर की जितनी डेवलपमेंट है अब्बासी साहब ने करवाई, फिर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बेशुमार चीज़ें अब्बासी साहब ने करवाई। बातें बहुत है, बहुत चीज़ें अब्बासी साहब की गिनाई जा सकती हैं, लेकिन अब्बासी साहब जैसा इंसान जो है ना हमारे शहर को मेरा ख्याल नहीं मिलेगा। तो इनके लिए मैं यही दुआ करूँगा कि अब्बासी साहब आपको ऐसी ढेर खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब फरमाए और आपका साया सब पे सलामत रखे। शुक्रिया। भाई साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा इनसे रिश्ता हिंदी वालों का और सब का, एक शफीक भाई का, एक दोस्त का, और सबसे जो इनसे बड़ी खसूसियत है वो धड़ेबाजी की है कि जिसके साथ होते हैं उसके साथ होते हैं, जिसके साथ नहीं होते उसके साथ नहीं होते, और जिसके साथ नहीं होते उसको पता होता है कि मेरे साथ नहीं है। ये सबसे बड़ी खसूसियत है कि इन्होंने कभी लिप सर्विस को, कभी और जो इनका दोस्त है वो सामने मौजूद हो तब भी दोस्त है, नहीं हो तो तब भी उसका दिफा करते हैं उसकी गैर मौजूदगी। तो आप तजर्बा करके देख लें कि किसी दोस्त का इनके सामने उसकी गैर मौजूदगी में तो ये हमेशा उनका दिफा करते हैं। और सबसे बड़ी खसूसियत है पिंडी शहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इनके प्रोजेक्ट्स इन्होंने पैशन के साथ काम किया और इनकी दिलचस्पी हमेशा लोगों के रफाई। और अमीर भाई साहब आप पिंडी के सरगंगा आपने यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट बना दिए हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है, और आपने पिंडी वाल होने का हक अदा किया। आज जो ये तकरीब है नवीद साहब, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा दस्ता लोगों का कायम करते हैं और हमेशा जोड़ के रखते हैं लोगों को। आज ज़्यादा मैं लंबी तकरीब नहीं करूँगा, हमारे ये जो दुल्हा मैडम हबीब वासी साहब, इनके प्यारे मुझसे प्यारे अल्फाज हम सुनेंगे। इनसे यकीन करें मैं बेहद प्यार करता हूँ। बहुत कम लोग मिलते हैं क्योंकि मुझे जब नवीद भाई ने बताया ट्रेड पॉलिटिक्स में आया अभी, तो जो फ़र्क था बाकी जनरल लीडर्स में, जनरल लीडर्स मैं मानता हूँ कि पैदाइशी होते हैं, उनको बना नहीं सकते। तो मैंने जो चीज़ नहीं की वो मुनाफिक नहीं की। जैसा मैं था चेहरे पे, जैसे मैं अंदर से आता हूँ, दिल और ज़ुबान में एक ही थी, वैसे ही हनीफ अब्बासी साहब को मैंने पाया कि जैसे ये अंदर है वैसे बाहर है। इनमें कोई दो हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, वो चीज़ नहीं है, दोगलापन नहीं है, और कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त यहाँ पे इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि हमारे हनीफ अब्बासी साहब पिंडी के लीडर, मैं इनको इस्लामाबाद के लीडर मानता हूँ, क्योंकि जब इन्होंने सेंटोर्स के लिए अपनी आवाज़ उठाई उस वक्त ये नहीं देखा कोई हदूद कोई मैंने पार करनी है, वो आए खड़े हुए, ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपनी हुकूमत के अगेंस्ट की, उनकी इंसाफ की बात हो रही थी, तकद्दुस की बात हो रही थी, कुर्सी की पोर्टफोलियो की बात नहीं हो रही थी वहाँ पे। तो जो इंसान बगैर किसी पोर्टफोलियो के, क्योंकि नबी मलिक साहब उनकी चीज़ें गिनवा रहे थे, मैंने कहा ये ओहदे इनके लिए नाकाफी है। ये इंसान बहुत आगे है इन ओहदों से, बहुत आगे है इन पोर्टफोलियो से, क्योंकि जो आपके पास ना कि वोट बैंक, जो लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, जो लोगों का प्यार आपके साथ है, वो इससे बहुत बढ़ के है। बगैर किसी पोर्टफोलियो के मैं समझो लोग आपसे प्यार करते हैं। और जो सेक्रीफाइस आपने की है, जो कहानी मैंने आपकी ज़ुबान से सुनी है, मैं तो चाहता हूँ कि आप पे एक किताब लिखी जाए ताकि लोगों को पता चले कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी कुर्बानी देने के बावजूद एक इंसान आज भी पाकिस्तान में रह रहा है और पाकिस्तान के लिए मज़ीद कुर्बानियाँ दे रहा है, सब कुछ होने के बावजूद। ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि व्हाट इज़ बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी अबाउट, एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज़ अ ट्रू पाकिस्तानी मैन। आई फील वेरी प्राउड टू कॉल ब्रदर, इट इज़ एन ऑनर टू हैव समवन लाइक हिम। मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी के लीडर नहीं, हम आपको पाकिस्तान का लीडर मानते हैं और देखने चाहते हैं। मेरे खवतीन अगेन वंस अगेन बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँ आपको, इनका और मेरा मिजाज क्यों मिलता है, ये इत्तेफाक है, ये नहीं कि हम इससे दोस्त से मिले। इनका जो स्टार साइन है वो और मेरा स्टार साइन एक ही है, हम दोनों के कैप्रिकॉर्न है, शायद इसलिए हमारा अंदाज भी एक जैसा है। तो मैं इसी के साथ आपको वंस अगेन बहुत बढ़ के मुबारकबाद पेश करूँगा और ये प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया आपसे। तो अब्बासी साहब इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू पीपल, बड़े कम लोगों में से इनका शुमार होता है जो दोस्तों के दोस्त हैं और जो अपने दोस्तों की इतनी केयर करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि चाहे वो बिजनेसमैन हो
کہ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ان کا کاروباری ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو شاید یہ کاروباری تعلق نہ ہونے کے بغیر بزنس کمیونٹی کسی کو اتنا انٹرٹین نہیں کرتی. تو یو آر ویری لکی. ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم پارٹ آف اٹ. اور یہ جتنے بھی آپ کے دوست بھائی محسن بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کی طرف سے بھی کہ یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ پیپل لائک یو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور ڈیپ ڈاؤن آئی بلیو کہ دیٹ یو آر اے نائس مین. بعض دفعہ غصہ، ایک اور چیز، ان کے نا جو ان کے ایکسپریشن ہوتے ہیں ان کے منہ پہ فوراً آ جاتے ہیں. تو جتنی سپیڈ سے غصہ چڑھتا ہے اتنی سپیڈ سے کم بھی ہوتا ہے. لیکن جو جس سے چاہتے ہیں اس کو اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ بات کر کے بھول بھی جاتے ہیں لیکن پیار دل سے کرتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے اتنے شاید اسمائلنگ فیس نہیں ہوتے میری طرح، ٹھیک ہے، لیکن وہ دل سے دے آر ہیپی، دے لک آفٹر فرینڈس اینڈ دس از ہاؤ ٹرو فرینڈز آر. ویری ہیپی برتھ ڈے ونس اگین جی. اور اوور ٹو یو نوید صاحب. تھینک یو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. اور پاکستان سویٹ ہوم تو ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں کا اس کے اندر، جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے اس کا بہت سارے دوستوں کا شیئر ہے. اور آج ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم ایک تناور درخت کی طرح ہے. اور میرے دو بیٹے آج میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، طیب خان فریدی اور نبیل یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ FSC کے اندر 90% نمبر سویٹ پبلک اسکول اور کیڈٹ کالج سے لیے. اور آج کل یہ سارے کے سارے بیٹے میرے پاکستان سویٹ ہوم کی ٹیم ہے. اور جو میری خواہش ہے کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر انشاءاللہ یہی میرے بیٹے بورڈ آف ٹرسٹیز بھی ہوں گے، اور انہی میں سے زمرد خان بھی ہوگا جو میری زندگی کے اندر پاکستان سویٹ ہوم کا CEO بنے گا. تو میں ایک دفعہ پھر مشکور و ممنون ہوں. علی پاسی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں بجانے کو بڑا نہیں آیا. اتنا زبردست قسم کا فنکشن ہے. آپ جیوں ہزاروں سال. تھینک یو ویری مچ. بہت رفتیں اور بلندی تجھ پر ناز کرے، رفتیں اور بلندی تجھ پر ناز کرے. خدا تیری یہ عمر اور بھی دراز کرے. حسین چہرے کی یہ تابندگی مبارک ہو. حنیف عباسی صاحب آپ کو سالگرہ کی خوشی مبارک ہو. کہ آج کی اس محفل میں جس طرح سجایا گیا ہے، یہ گریجولی چیزوں کو نوید ملک صاحب اوپر لے کے آئے ہیں. پہلی برتھ ڈے پہ میرا خیال ہے ہم نجیب ملک صاحب آپ کا، نوید ملک صاحب دوبارہ یہ آپ نے جو شاید ہمیں بھی گھر میں، میں نے نہیں کبھی اتنی آرگنائز قسم کی برتھ ڈے میں نے زندگی میں نہیں بنائی. اب جب سے سیاست میں ہیں لوگ اٹھا کے کیک لے آتے ہیں گھر میں، ہم کیک کاٹ دیتے ہیں اور 10-10 20-20 کیک آ جاتے ہیں، لیکن اتنی آرگنائز برتھ ڈے میں نے اپنی زندگی میں نہیں بنائی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی میں جو ہمارے اسلام آباد چیمبر کے لوگ، خاص طور پہ عظہر الاسلام صاحب اور احسن صاحب چلے گئے ہیں، شیخ فہد صاحب جو ہمارے اس وقت رن کر رہے ہیں اس کو، عامر وحید صاحب ہمارے بھائی جیسے. ہمارا سب سے پرانا تعلق اس راولپنڈی میں، جب سے میں راولپنڈی میں 92 91 92 میں قدم رکھا تھا تو میری پہلی دوستی جس شخص سے ہوئی، اور آج بھی الحمدللہ قائم و دائم ہے، اس کا نام عامر وحید ہے. اسی طریقے سے میرے دوست، میرے بھائی طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ جمشید صاحب، راجہ سفیر صاحب، ہمارے یہاں پہ ذیشان نقوی صاحب، اسپیشلی ان کے ساتھ ایک محبت پیار کا رشتہ ہے. یہ پالیٹکس کے حوالے سے یہاں نہیں ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے. شام صاحب یہاں موجود ہیں. یہاں پہ شفاق چٹھا صاحب نے بات کی، جیسے میں نے عرض کیا حاجی عرفان صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے، وہ یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر افشا ملک صاحبہ، ان میں خواتین میں سے بھی میں جن کو جانتا ہوں ان کا نام لے لوں گا، باقی نام میرے ذہن میں شاید نہیں آئیں گے، لیکن ان کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں جو یہاں پہ موجود ہیں. شازیہ رضوان صاحبہ ہماری PPA 18 کی پریزیڈنٹ ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے کہا بہت اچھا کام اپنے حلقے میں خواتین کے حوالے سے، اگر اس وقت راولپنڈی میں سب سے اچھا کام کر رہی ہیں تو وہ شازیہ رضوان صاحبہ ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے 2 میڈیا سے بڑے اچھے دوست یہاں تشریف فرما ہیں. سمر عباس صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ہم TV سے. ہمارے پاس اس وقت ہماری پرانی کلیگ، بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق رہا تنزیلہ صاحبہ سے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں ان سب باتوں کے بعد چند گزارشات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سردار یاسر الیاس صاحب، میں چھوٹی سی گزارش کروں گا، اس سے بات کلیئر بھی ہو جائے گی.
कि मेरा उनके साथ या उनके भाई के साथ तो बिल्कुल आज के दिन तक मेरा कोई ना टेलीफोनिकली कभी राब्ता हुआ, ना कभी हम किसी महफिल में मिले। ये अनलकीली कह लें कि मैं उनके साथ कभी उस तरह मेरा मुसाफा नहीं हो सका। यासर, सरदार यासर के साथ मेरा एक या दो दफा जब वो प्रेसिडेंट थे इस्लामाबाद चैम्बर के, तो इनके साथ मेरी हेलो हाय हुई। इसके अलावा कभी हमने इकट्ठा खाना नहीं खाया, कभी कॉफी नहीं पी, कभी हमारा कोई, मैंने इनको फोन नहीं किया किसी काम के लिए। यहाँ पे मकसद सिर्फ ये था कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी थी, सिर्फ सेंटोरस के हवाले से हमारी हिस्ट्री नहीं है हनीफाबासी का जिक्र, वो गक्कड़ प्लाजे की आग हो या मदीना क्लॉथ मार्केट और मक्का क्लॉथ मार्केट, वहां पे लगने वाला फसाद के जरिए आग हो, या ट्रेडर्स की बहुत बड़ी मूवमेंट जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चली थी, सरदार ताहिर साहब सबसे बड़ी, उसमें निकाले सरदार साहब तारीख निकाले 25,000 के करीब लोग रावलपिंडी की सड़कों पे ट्रेडर्स ने कैंट को मिलाकर, इस्लामाबाद को मिलाकर, जब हमने मुशर्रफ के दौर में, डिक्टेटर के दौर में, जब हमने एंटी सेल्स टैक्स मूवमेंट चलाई थी, उसको भी आपने आपके इस खाकसार भाई ने लीड किया था और कामयाबी हासिल की थी उस वक्त जब कोई लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद थी। तो मैं सरदार यासिर साहब के हवाले से एक बात गुजारिश करने जा रहा था कि अचानक मैं एक मुबारकबाद देने के लिए इस्लामाबाद चैम्बर में गया। जफर मुख्तारी साहब से हमारे पुराने तरीना ताल्लुकात हैं, उनके बेटे को, वहां पे ये वाक़या का पता चला कि इस तरीके से, तो मैं उनके साथ, उन्होंने कहा आप हमारे साथ इंटीरियर मिनिस्टर के पास हैं। आगे लंबी कहानी है, उसको यहाँ दोहरा कर वो मैं उस तरीके से उसका सारे जो इवेंट है उसको खराब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ उस सेंटोरस के अंदर काम करने वाले बच्चे मेरी आंखों के सामने थे, वो दुकानदार मेरी आंखों के सामने थे, जिसकी बुनियाद पर मैं इतना बड़ा स्टैंड ले गया कि मैंने इसी शहर इक़्तिदार के अंदर बैठकर, अपनी हुकूमत के अंदर बैठकर उस नताइज से बेखबर होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आज भी आप निकालें तो आप सोच नहीं सकते कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे बाद मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस भी में था और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी था। मैं उस वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा मोहब्बत करने वाला शख्स हूं। मैं ऐलान करता हूं, मैं इसलिए मोहब्बत करता हूं कि इंसानियत से मोहब्बत करने वाला शख्स और लोगों की खिदमत करने वाला शख्स, अगर मैंने अपनी 35 साल सियासी जिंदगी में किसी को देखा है तो उसका नाम शहबाज शरीफ है। जब मैंने उसके सामने ये बात रखी तो उसने उसी वक्त मुझे कहा, मैंने गुस्से में, जैसे भी यहाँ दानियाल चौधरी साहब और शेख फाद के हवाले से, मैं फाद शेख के हवाले से बात कहूँगा, ये हमारे बच्चों की जगह है, लेकिन हमने ये चेंज कर दिया है बच्चों से वाली बातें। अब वो मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरा छोटा भाई है, तभी बात बनेगी, वरना तो बच्चों वाले सिलसिले में फिर बड़ा लिबरल इंसान ले जाता है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आज़म को, और इस तरह नहीं बताया जैसे मैं आपको सारी से बता रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने 10 मिनट से ज्यादा भी टाइम लगाया होगा, 5 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि इसको इसी वक्त करें। और जो वादा, जो डेडलाइन मैंने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें सरदार ताहिर साहब का बड़ा रोल है, इनके साथ मिलकर अजवर बलोच साहब का बड़ा रोल है उसके अंदर, उन्होंने अंजुमन ताजरान के सारे ग्रुप जो थे, चौधरी खालिद साहब भी थे उसमें शामिल थे, याद बादशाह का बड़ा रोल है, पूरे इस्लामाबाद चैम्बर का बड़ा रोल है, उन सब ने मिलकर, यकीन माने, हमने वहां पर जो अल्फाज अदा किए, जो कहा और जिस तरीके से अपने लोगों के लिए हम निकले, मैं नहीं समझता था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत जो है, मुझे वज़ीर आज़म के मशीर ने कहा, जब मैं कहीं हम हाउस गया और उसने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुनी, कहता जी आप हुकूमत में हैं। मैंने कहा मैं हुकूमत में जरूर हूँ, लेकिन मैं हुकूमत में जिन लोगों की वजह से हूँ, मैं उनके साथ पहले हूँ, हुकूमत में बाद हूँ। मैंने सरदार यासिर को, जब मेरी इनकी कुर्बत इस वाक़े की वजह से हुई, तो मेरे एक और दोस्त हैं बहुत बड़े, चौधरी अब्दुल रऊफ साहब यहाँ से चले गए, मेरे
वो भी प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखने वाले टाइकून समझ लें, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने उन्हें दो चीजें देखी हैं, उस शख्स के अंदर आजिज़ी है और उस शख्स के अंदर सादगी है। मैं जब उनकी मालो दौलत को देखता हूँ और उनके मामलात को देखता हूँ तो उनमें दो चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। दानियाल चौधरी साहब भी अक्सर वहां मुझे देखते हैं, हम बैठे होते हैं। एक तो उसने अगर किसी डिपार्टमेंट का चपरासी आया है या इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का सदर आया है, दोनों को एक ही तरीके से मिलते हैं। और दूसरा, उस शख्स की अंदर आजिज़ी जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तो मैंने जो सरदार यासर के अंदर जो चीज देखी और जिसकी वजह से मैं इनके साथ दोस्ती में, मोहब्बत में, प्यार में, अपने भाइयों वाला एक ताल्लुक है, दोस्ती से बढ़कर है, इनके अंदर भी अल्लाह ताला का सब कुछ देने के बावजूद, इनके पास होने के बावजूद सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर जो है वो आजिज़ी है। अल्लाह ताला इस आजिज़ी को बरकरार रखे और इनको इन तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। मैं गुजारिश करना चाहता था कि अपने अपने कामों में ना अपने गरीब रिश्तेदारों को भी शामिल किया करें। ये नहीं है कि सरदार यासर के लिए तो मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन एक छापे वाले आए या छोटा दुकानदार आए तो मैं उसके लिए मुंह बोल दूं, फिर अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत नहीं डालता। मैं आज का एक वाक्या पेश करता हूँ आपके सामने, और ये मैं उसको वही करता हूँ जो गुजरती हो या मैंने सुनी हो या देखी हो, अपनी आंखों से तजर्बा हो। फिर मैं जुम्मन खान साहब की तरफ आऊँगा। मैं आज पब्लिक डे था, मेरा तरीकाकार ये है कि मेरे दोस्त जो हमारे साथ लड़के होते हैं अपने, उनको लोग कहते हैं कि मैंने हनीफ अब्बासी से मिलना, जो हमारे लोग तो 60, 70, 80 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब, तो मैं हफ्ते में एक दिन रख लेता हूँ। लेकिन मैं दिन कौन सा रखता हूँ? मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं रखता जिसमें फोन करने के आगे तो बंदा ही मौजूद रहा हूँ। मैं वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डे में मैं अरेंज करता हूँ, जैसे आज मैंने किया हुआ था। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर, सबकी मैं बात सुन रहा था, फोन कर रहा था लोगों को। और आज तादाद थी कम से कम भी 9 बजे मैंने शुरू किया, 2 बजे खत्म किया, 250-300 के करीब लोग थे जो बारी बारी हो सकता। उसमें खातून थी जो मेरे छोटे से लॉन में कोई इतना बड़ा गर्मी नहीं हुई, वो बैठी हुई थी। तो जब मैं बाहर निकला किसी को अलविदा कहने के लिए, तो उस माँ ने मुझे कहा, उन्होंने शुरू की, मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ? उसने कहा मेरा बेटा जेल में। तो उसको जेल वाले तंग बहुत करते हैं, करीब औरत थी। तो मैंने वो अपने उसको कहा, लड़के को मैंने कहा उसको मिलाओ यार। तो बहुत कुछ 2-4 मिनट इधर उधर कर गया। मैंने कहा अगर यही काम मैंने कहा होता ना किसी बड़े बंदे के लिए 1 सेकंड में तुमने मिलाना। मैंने खुद सुप्रिटेंडेंट जेल से बात की, मैंने उसके जराइम नहीं पूछे, उसके क्राइम नहीं पूछा ना मुझे पूछना चाहिए। वो अपनी सलाह वहाँ पे ले रहा है, मैंने उसको छुड़वाने के लिए तो नहीं फोन कर रहा। मैंने उस सुप्रिटेंडेंट को आज जब फोन किया उस खातून के लिए, और मैंने उसको ये कहा कि उस बंदे को जो भी उसका क्राइम है मैं उसमें नहीं मुदाखलत कर रहा, ना कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जो जेल के रूल्स है उससे 1 मिनट आगे या पीछे इस शख्स को जहां ये रह रहा है यहीं रहेगा। इसको कोई प्रॉब्लम हुई तो अपना सुप्रिटेंडेंट साहब आप जिम्मेदार हो। वो खातून के आंसू गिरे। मैं जब बाहर निकला 2 बजे सारा काम करके, बड़े काम किए मैंने आज अल्लाह ताला के फजल से, जो मेरा अल्लाह ताला ने एक खूबी भी दी हुई है, खासा भी है कि मैं उसी वक्त काम को निपटाता हूँ। लेकिन सब कामों से जो बेहतरीन काम आज मुझे जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हुई, वो उस गरीब माँ के बच्चे के लिए जो मैंने, और उसकी आंसू को पूजने के लिए जो मैंने काम किया था, मैं उससे ज्यादा मुश्किल। और इसी से मैं बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़े बड़े मामलात से जब निकलता हूँ, और फिर जो मेरे पे गुजरी उसको मैं पर्सनलाइज करके मैंने अपने मुल्क के खिलाफ, जैसे किसी दोस्त ने कहा ना याद करने ये बड़ी हिम्मत की बात है। कल एक नए कमिश्नर साहब आए तो उनको हम कारकर्दगी अपनी भेज रहे थे। 3 मैंने वीडियोस मेरी छोटी छोटी हैं। एक है नए हॉस्पिटल जो हमने बनाए थे खेल के मैदान में, एक मेट्रो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों जिन्होंने इस मुल्क को मोटरवेज दी, एटमी कुव्वत बनाया और सीपैक जैसा मनसूबा इस पाकिस्तान में लेके आए, वो अटक झील में बड़े हैं और साफ छोड़े जा रहे हैं। जो भी इस पाकिस्तान में काम करता है उसके नताइज जो है वो पाकिस्तान में किसी किस्म के हैं।
और ये तारीख है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो मैंने उस चीज को किसी तौर पर नहीं लिया ना। अगर आप देखेंगे आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं 25 साल कैद के साथ खड़ा, मेरी कैद आज भी खत्म नहीं हुई, लेकिन मुझे अल्लाह ताला पे वो यकीन है। अब आपका इनर सेटिस्फाई हो तो आप अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। आज बात हो रही थी, जुमत खान साहब ने बात की, मैं कहता हूँ जुमत खान ये शामत के बगैर, लगी लिपटी के बगैर, मैं एक लफ्ज़ आपके बारे में कहना चाहता हूँ कि जितने मालदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने बड़े सियासी फ्रेंड बैठे हुए हैं, खुदा की कसम जो यतीम की कफालत है, और वो कफालत इस तरह करना कि जिस तरह अपने बेटे की और अपनी बेटी की, वो आप हम सबसे मुमताज हैं, सबसे बड़े हैं। एयरपोर्ट की मेट्रो देखें जो 4 साल बंद रही, आप गुलबर्ग ग्रीन से लेके बिम्स तक की मेट्रो देखिए, आप भाराको से मेट्रो देखें, भाराको का बाईपास इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से तो माई का लाल बना के दिखाए इंशाअल्लाह ताला। हम उसको 23 मार्च को वजीर आजम साहब ने टाइम दिया, वो कल नहीं माने, किसी सूरत में हम मीटिंग में देती है मौजूद। मैं 23 अप्रैल कह रहा था, वो नहीं माने। अब 23 मार्च का टारगेट हमने रखा है, लेकिन अगर बहुत लेट भी हुआ तो इंशाल्लाह 15 अप्रैल तक उसका भी इफ्तार कर देंगे। और आपको पता है कितना बड़ा बॉटल नेक था वो, कि वहाँ पे गाड़ी 2-2 घंटे, आप मरी उतनी देर में पहुंच जाए जितने 12 को क्रॉस करने में लगते थे आप। ये वो चीजें जो प्रैक्टिकल है, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं लाऊंगा, ये लंबी कहानी है, अलग तैला की कहानी है। ना मैं यहाँ सुनाऊंगा, ना मुझे सुनाने का यहाँ पर जरूरत है, लेकिन ये वो बातें जो हम आपकी शेयर कर रहे हैं, इसमें हमें कोई निशाने इम्तियाज देने के लिए हम बातें नहीं कर रहे। हम ये बातें कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप अब जो 13 रूल्स अप्रूव किए हैं, 13 रूल्स इलेक्ट्रिक बसेस के 13 रूल्स अप्रूव हो चुके हैं। मई में इंशाल्लाह ताला 160 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, तमाम जितने सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद में, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से 75 साल में पहली दफा इस्लामाबाद को एक बेहतरीन इस्लामाबाद के लोगों को ट्रांसपोर्ट मिल सका। 1,73,000 मुझे कल जो राइडरशिप समर अब्बास साहब जो पिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो है, इसकी राइडरशिप जो है वो कल मुझे वो हमारी बहन है समाला साहबा जो वहाँ की MD है, तो वो मुझे डेली अपडेट करती रहती हैं। 1,73,000 की राइडरशिप थी कल के दिन। ये 80,000 70,000 से शुरू हुई, 1,15,000 30,000 का छोड़ के ये 2018 में आज अल्लाह की तरफ से 1,73,000 लोग सफ़र करते हैं। तो पिछले 2 नस्ल से हमने एक स्टडी करवाई तमाम मेट्रोस की, जो इस्लामाबाद में भी चल रही है, 4 रूट चल रहे हैं, और एक ये जो पिंडी वाली, तो उसमें 70% लोग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं, उसमें सफ़र करते हैं 70%। उनको ये सस्ती सवारी जो है वो मुयसर आई है। तो ये कारनामे जो हैं, ये जो काम जो है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बड़े मुश्किल मराइल से गुजर रहा है, और इसमें कुछ चीज़ों को हमें रेड लाइन लीडर नहीं होना चाहिए भाईजान, रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए। अगर आपने रेड लाइन लीडर बनाना है तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? वो कोई भी हो, कोई पार्टी हो, उसकी रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए। और आज देखें कि हमें पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, हमें अपने इक़्तिदार की फिक्र है। यानी दुनिया दो जो इक़्तिदार मिल जाए, पाकिस्तान जाए खुदा ना खास्ता था। अब एक्ट तो देखें लोगों का। मैं कहता हूं कि इस वक्त मुझे यकीन है कि अगर इसाक डार साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब, जिनको मैं दोनों को बहुत करीब से जानता हूं, बड़ा करीबी ताल्लुक है, आज भी जब उनको काम करते हुए मैं देख रहा हूं, मैं आज फिर दावे के साथ कहता हूं, बड़े अज़म के साथ, इस्तेकाम के साथ और पक्के इरादे के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को चंद महीनों में इस क्राइसिस से और इस भंवर से वो निकाल के आपको सिर्फ दुरुस्त होनी चाहिए, सिर्फ दुरुस्त होनी चाहिए। जाना पेशावर है, वो हमारा लाहौर की तरफ हो तो फिर सारी जिंदगी नहीं बंदा पहुंच सकता। खवातीन के हवाले से जो
मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर पहला क्रिकेट स्टेडियम फ्लड लाइट हो, पहला हॉकी जो हमारी ऑस्ट्रोटर्फ है, पहला अगर हॉकी का फ्लड लाइट हो स्टेडियम हो, मेट्रो के अंदर मुख्तस की भी जगह हो, या इस रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हो, खवातीन के कॉलेजेस हो, उन सब की बुनियाद भी मियां नवाज शरीफ शहबाज साहब के दौर में रखी गई। सिर्फ बातें नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है, अमल है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा काम का जारी और सारी रहेगा। इस्लामाबाद को इंशाअल्लाह हम जितना भी कम से कम वक्त हमारे पास मौजूद है, अब मैं एक रूट दे के आया हूँ निशान नकवी साहब के साथ, कर दूँ यहाँ पे बोल दूँगा सारे जाए जमीनें ना ले लें। अलेक्जेंडर रूट कहते हैं उसको, अलेक्जेंडर द ग्रेट जहाँ पड़ाव किया था उसने, उसमें भी इंशाल्लाह उस तरफ भी हम रोड शोड और सारी चीज़ें बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। मार्गला रोड तो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन उसके साथ आप अंदाजा लगाएं पब्लिक की जो सोच होती है। जब मैं मार्गला रोड विजिट करने गया आज से 4 महीने पहले जा रहा भाई साहब, तो मैंने उन्हें पूछा कि ये जब एग्जिट होंगी रोड गाड़ियाँ तो कहाँ जाएंगी? उन्होंने कहा E11 की सर्विस रोड पे। तो मैंने कहा कैलकुलेशन क्या है कि कितनी गाड़ी संगजानी से दाखिल होगी तो इस रोड पे आपकी एग्जिट होगी इस्लामाबाद में दाखिल होगी। उसने 50 से 60 हज़ार की हमारी कैलकुलेशन है दिन की। तो मैंने कहा 50 से 60 हज़ार गाड़ी सर्विस रोड से कैसे गुजरेगी? उसके ऊपर फिर उस वक्त के चेयरमैन से हमने कहा कि आप इस 11th एवेन्यू को, जो E11 मार्केट के सामने जो अगर आपने देखा होगा एक इंटरचेंज बन रहा है और एट ग्रेड, ये अप्रूवल हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से एक तरफ कुछ करोड़ की जो है वो फौरी तौर पे इमरजेंसी में लेकर उसको हमने शुरू करवाया। अब इंशाल्लाह रोड का इफ्तिताह हो जाएगा। 1 महीने के लिए उस रोड से गुजरना मुश्किल होगा, लेकिन 1 महीने के बाद इंशाल्लाह 11th एवेन्यू जब ओपन होगा तो आप जब संजानी से दाखिल होंगे तो मेरा ख्याल है ऐसा 20-25 मिनट में आप मार्गला रोड पे होंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट बहुत बड़ी बात है। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बड़ा ममनून हूँ सबका, और नवीद मलिक साहब आपका भी। और बहुत अच्छी महफिल आपने सजाई है और बड़े कीमती लोगों ने हमें वक्त दिया है, इसलिए मैं फर्दन हर शख्स का नाम ले रहा था, क्योंकि जो इनका टाइम है, इनका वक्त है, वो बहुत कीमती है। मैं तो जैसे दानियाल चौधरी साहब और जावर शाह साहब हमारे भाई जो हैं, इन्होंने फरमाया हम तो सारा दिन, हमारा तो काम ये है। जाहिद साहब आपका नाम भूल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो और भी दोस्तों का जिनका मैं नाम नहीं दे सका, तो दानियाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे चेहरे पे चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। अगर कोई दोस्त अहबाब हम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करने वाले का तकादा भी यही होता है कि उसको उसके मुकाबले में भी कोई मोहब्बत और प्यार मिले, चले ना मिले, लेकिन कम अज़ कम पीठ में छुरा भोंकने वाले ना हो, उस पर आके फिर बंदा थोड़ा सा खासा हो जाता है। लेकिन अब वो आदत भी हमने तर्क कर दी है, अल्लाह पे छोड़ दी है, और माफ़ी का जो है आम ऐलान है। तो कहने से मुराद ये है कि मेरा आइडियल कौन है, ये मैं ज़रा वजाहत करूँ। मेरा आइडियल हमेशा से नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, और उन्हीं की तालीम और तरबियत में जो चीज़ें हैं उसी को फॉलो करके हम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो उनमें और उनकी शख्सियत से या उन माशरे के अंदर तब्दीली आती है, वो मुआफ़ी है। माफ़ करना है, दरगुजर करना है। बड़े से बड़े दुश्मन को माफ़ किया। भाई हिद्दा को माफ़ करना कोई आसान काम नहीं था, जिसने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा दबाया था, लेकिन सिर्फ ये शर्त रखी थी कि इसको कोई मेरे सामने ना, यानी हमेशा माफ़ी का ऐलान किया जाता था। कहने से मुराद ये है वही उनके सहाबा के अंदर था। हज़रत अली ने एक शख्स को छोड़ दिया, बड़े ताकतवर शख्स को, जब वो उन पे हावी हो गए तो उन्होंने हज़रत अली पे थूक दिया उस शख्स ने नीचे से, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब मैं जो अमल करूंगा मैं अपनी ज़ात के लिए करूंगा, पहले मैं जो अमल कर रहा था मैं अपने दीन के लिए कर रहा था। तो ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी हमें। जिंदगी का पता कोई नहीं, किसी का भी नहीं पता, एक लम्हे का नहीं पता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको आज तकरीब में एक फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, और वो जैसे सुबह मुझे एक सेटिस्फेक्शन हुई, आज मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी
कि हम ज़ुमुर्द खान के बाजू बने, हम यतामा और मसाकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, बल्कि अपने बेटियों और अपनी बच्चियों का नाम इस्तेमाल करें और इनके बाजू बन के मैं इंशाल्लाह बाज़ा कमी खुदाई की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिस कदर भी मुमकिन हो सका अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम जो वक्त है इंशाल्लाह आपके साथ इस खिदमत में और इस जन्नत के अमल में जो शॉर्टकट है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आपका साथ देंगे। और आज की इस महफिल में भी मेरा पैगाम मेरी बर्थडे को छोड़ के, मेरी और चीज़ों को छोड़ के यही पैगाम है कि हम सब अपनी उन बेटियों का और उन बेटों का जिनके लिए ज़ुमुर्द खान ने बहुत मेहनत की है, वहाँ जाकर उस कॉन्सेप्ट को यकसर चेंज करती हैं। यकीन माने वो बच्चियों और बेटे मेरे इस भाई से इतना प्यार करते हैं, इनको पापा जानी कहते हैं, हम भी आपको पापा जानी कहते हैं। वाह